Hey, what's up guys, Gaurav back with a video, and guys, in this video I'm gonna do the unboxing of the Apple Watch Series 7. So let's begin. So guys, this is the box for this Apple Watch Series 7. As you can see, we have the Apple logo over here and the watch branding as well, and on the back it tells us about the Series 7. This is the midnight color. You can also get this watch in few different color options as well. The case is aluminium. You can also get this watch in titanium and stainless steel finish, and the size is 45 mm. There's also one more size which is 41 mm, but this is the bigger size which is 45 mm, and the price on the box is written 44,900. so it can go up if you opt for the stainless steel or the titanium version, and can go down if you opt for the 41 mm band. So let me just open this, and to open this we have the pull tabs over here. So let me just pull and open them. So like this you can open this box. Let me just take the watch out. So in this one we have the watch. Let me just keep this to a side, and this is the band which you get inside the box. So guys, this is the band which we have, as you can see, and this is a sport band, and we also have the pull tab to open this band. Let me just keep this to a side because I also have this extra band which I bought separately. So let me just keep all this to a side and bring the watch box itself. We have the pull tabs as well. Let me just open दिस. सो कुछ इस तरह की जो है आपको इसके अंदर पैकेजिंग देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर आपकी वॉच यहाँ पे रखी हुई है, एंड देन वी ऑल्सो हैव डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया. तो एक बार के लिए जो है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ. तो आप जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस तरह के जो है आपको ये पेपर वर्क वगैरह देखने के लिए मिलते हैं. कोई भी आपको एप्पल स्टिकर जो है देखने के लिए इस वॉच के अंदर नहीं मिलता. तो इसको भी जो है एक बार के लिए साइड पर रख देते हैं और बात करते हैं इस केबल के बारे में, क्योंकि ये जो है थोड़ी सी आपको डिफरेंट केबल मिलती है, क्योंकि इस वॉच में जो है आपको फास्ट चार्जिंग का जो है सपोर्ट मिलता है. तो इस पर जो है एप्पल ने आपको कोई भी जो है ब्रेक नहीं प्रोवाइड करी है. और ये जो केबल है आप देख सकते हैं, ये USB-C वाली आपको जो है केबल देखने के लिए मिलती है. और यहाँ पे जो है आपको ये नॉर्मल जो एप्पल वॉच का चार्जर होता है, चार्जिंग पक होता है, वो जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. तो कुछ इस तरह की फिनिश में जो है आपको ये देखने के लिए मिलता है, और आप जो है इसमें कोई भी फास्ट चार्जर को जो है यूज कर सकते हैं, USB-C वाले को. तो मैं जो है इसको एक बार के लिए साइड पे रखता हूँ और हम बात करते हैं वॉच के बारे में. सो गाइस, यहाँ पे जो है हमारी ये एप्पल वॉच सीरीज 7 रखी गई है, तो एक बार के लिए जो है मैं इसको भी निकाल लेता हूँ. सो गाइस, कुछ इस तरह से जो है हम इस वॉच को पुल करके बाहर निकाल सकते हैं. सो लेट मी जस्ट फर्स्ट गिव यू एन फिजिकल ओवरव्यू. ऑन द राइट साइड वी हैव दिस डिजिटल crown as well, and we also have the microphone as well as the power button. And on this end we have this single speaker. Earlier on the Apple Watch we used to have the two speakers, but this time we have only one speaker. And on the back we have the charging area as well as all these sensors, and we also have the buttons to remove or attach the straps as well. So guys, before setting up the watch, let me just also open this band. ये watch band जो है, ये इसका नाम जो है वो है डीप नेवी स्पोर्ट लूप बैंड, और ये जो है एक 44 mm वाला बैंड है. और ये मैंने जो है अलग से परचेज किया था इस एप्पल वॉच के साथ. जो वॉच के साथ मिला था वो ये वाला बैंड है, but I like this kind of band much more than the original band which we get with the watch. So इसको भी जो है एक बार ओपन कर लेते हैं. Then we have this band over here. Let me just remove this. तो अब देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो हमें ये बैंड मिलता है. And actually I like this kind of band much more than the soft silicon वाले बैंड, क्योंकि ये जो है थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये काफ़ी जो है एक कैजुअल लुकिंग बैंड के लिए जो है मैंने ऑप्ट किया है. तो इसको भी जो है मैं अटैच करूँगा, उससे पहले जो है मैं एक बार वॉच को जो है सेट कर लेता हूँ. So guys, I have finally added this strap with this watch, and let me just now start pairing. So if I click on start pairing and go with the Apple Watch on my iPhone, let me just go to all watch and add watch. So as you can see, set up watch for myself, and let me just scan this QR code real quickly. So guys, as you can see, it says your Apple Watch is paired, और यहाँ पे जो है आपको दो ऑप्शन मिलते हैं. जो पहला ऑप्शन है वो है रिस्टोर फ्रॉम बैकअप का, और आपको जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वो है सेटअप एज अ न्यू एप्पल वॉच. तो बेसिकली मैं जो है इसको रिस्टोर करने वाला हूँ बैकअप से. और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरे को ये डिवाइसेस की जो है लिस्ट शो कर रहा है कि जो भी मेरे पास जो एप्पल वॉच है. अब बेसिकली मेरे पास जो है ये मेरी तीसरी एप्पल वॉच है. इससे पहले जो है मेरे पास दो एप्पल वॉच थी,
but I don't know why it's showing so many of the Apple watches. But let me just select with the recent one. So guys, सीरीज 7 के अंदर जो है आपको ब्लड ऑक्सीजन का भी जो है फीचर देखने के लिए मिलता है, और इसको जो है मैं एक बार के लिए सेटअप और लेटर करूंगा. एंड देन यू ऑल्सो हैव ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन दिस एप्पल वॉच विच बिकेम अ प्रोमिनेंट थिंग विद द एप्पल वॉच सीरीज 5. तो सीरीज 7 के अंदर भी जो है आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, और जो एप्पल ने क्लेम किया है कि आपको 70% ब्राइटर मिलेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस एप्पल वॉचेस. सो इसको भी जो है एक बार कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे जो है ऐप व्यू को भी जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं. मेरे को तो पर्सनली ग्रेड व्यू पसंद नहीं है, मैं हमेशा जो है लिस्ट व्यू पे रखता हूँ. देन आई विल सेलेक्ट द लिस्ट व्यू एंड देन इट सेज योर एप्पल वॉच इज सिंकिंग. तो इसको जो है मैं थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही लीव कर देता हूँ, और उसके बाद जो है अब मैं इसको एज अ मेन एप्पल वॉच अपनी यूज़ करने वाला हूँ, और उसके बाद मैं आपको अपने थॉट्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. सो गाइस, मैंने जो है अपनी एप्पल वॉच को पूरी तरह से जो है सेट कर लिया है. 2 नए वॉच फेस मिलते हैं जो एक्सक्लूसिव है सीरीज 7 के लिए, वो भी जो है मैं आपको शो कर देता हूँ. तो जो फर्स्ट फेस है वो है कॉन्टोर करके. यहाँ पे जो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का जो है हमें ये वॉच फेस देखने के लिए मिलता है, जो आपने रेंडर वीडियोस में भी देखा होगा एप्पल की. तो कुछ इस तरह का जो है हमें ये वॉच फेस मिलता है, जहाँ पे जो है नंबर्स हैं ये रैप अराउंड हो जाते हैं डिस्प्ले के अंदर. तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि आप साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से जो है ये नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे. तो ये जो है आपको एक नया वॉच फेस मिलता है, और इसमें भी जो है आप इसको एडिट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें कॉम्प्लिकेशंस वगैरह को ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर आप डे टाइम वगैरह को जो है चेंज कर सकते हैं. स्टॉप वॉच को आप ऐड कर सकते हैं, टाइम जोन को जो है आप ऐड कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप इस पर क्लिक करेंगे सर्कल पे तो आप अपने एक्टिविटी ट्रैकर को भी जो है ऐड कर पाएंगे इसके अंदर. और अगर मैं बात करूँ कि आप इसमें कलर को जो है चेंज कर सकते हैं, तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने वार्म ग्रे किया हुआ है. तो अगर मैं इस डायल को जो है मूव करूंगा तो मैं जो है यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकता हूँ. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रीम हो गया है. देन आई हैव स्विच टू ग्रे. यहाँ पे जो आपको ये रेनबो कलर भी मिलता है, तो आप इसको भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट सम डिफरेंट कलर एज वेल. तो कुछ इस तरह की जो है आपको यहाँ पर एडिटिंग के लिए चीज़ें मिलती हैं. और अगर आप डायल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पे डायल का कलर चेंज कर दिया है, और आप जो है इसमें स्टाइल को भी जो है चेंज कर सकते हैं. अगर आपको ये राउंडेड चाहिए या फिर आपको जो है एक तरह का रेगुलर साइज चाहिए तो आप जो है उसको भी चेंज कर पाएंगे. तो एक बार अगर मैं बैक चाहता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ तो कुछ इस तरह से जो है आपको ये नया वॉच फेस देखने के लिए मिलेगा. अगर मैं बात करूँ सेकंड वॉच फेस के बारे में, तो सेकंड वॉच फेस जो है वो है मॉड्यूलर डुओ. तो इसको भी जो है मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ. तो यहाँ पे जो देख सकते हैं ऊपर टॉप लेफ्ट में जो है मेरी एक्टिविटी रिंग्स हैं. यहाँ पे जो है मैंने इस टाइम को रखा हुआ है. देन आई ऑल्सो हैव द वेदर एज वेल, और यहाँ पे जो है मैंने वर्ल्ड क्लॉक को भी जो है ऐड किया हुआ है. अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं. तो अगर आप इसको सपोज कीजिए एक्टिविटी को हटा के आप अलार्म लगाना चाहते हैं या आप कुछ भी लगाना चाहते हैं तो आप जो है ये कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसको ऑफ भी कर सकते हैं. तो मैं जो है इसको भी एक्टिविटी भी छोड़ देता हूँ. देन यू कैन ऑल्सो एडिट द वेदर एज वेल एज यू कैन सी. और यहाँ पे भी जो है आप वर्ल्ड क्लॉक वगैरह लगा सकते हैं या फिर आप यूवी लगा सकते हैं. देन यू कैन ऑल्सो एडिट दिस एज वेल. अगर आपको जो है कोई और सिटी लगानी है तो इसमें भी जो है आपको काफ़ी सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल जाती हैं इसके अंदर. तो गाइस, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट फीचर के बारे में, तो एप्पल वॉच सीरीज 7 के अंदर जो है आपको फुल साइज QWERTY कीबोर्ड भी जो है देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको जो है स्वाइप फंक्शनैलिटी भी जो है देखने के लिए मिल जाएगी. और मेरा जो टाइपिंग एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहा है. अगर मैं स्वाइप फंक्शन को यूज़ करता हूँ, ऑल्दो इतनी जो छोटी स्क्रीन पे टाइपिंग करना कोई सेंस नहीं बनाता, बट यू कैन डू दैट एज दिस हैज़ अ फुल साइज कीबोर्ड एज वेल. सो गाइस, अगर मैं बात करूँ एप्पल वॉच सीरीज 7 की डिस्प्ले के बारे में, तो जो स्क्रीन साइज आपको मिलता है इस वॉच के ऊपर वो है 1.9 इंचेस का, और जो रेजोल्यूशन है वो है 484 बाय 396 पिक्सल का, और आपको जो PPI मिलता है वो है 326 का. डिस्प्ले टाइप की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है आपको रेटिना LTPO OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे पीक ब्राइटनेस आपको मिलेगी 1000 निट्स की. और LTPO डिस्प्ले बेसिकली एक वेरिएबल रिफ्रेश रेट है. सो आपको जो है
इसके अंदर कुछ इस तरह की जो है स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। और ये जो है एक ये रैप अराउंड डिस्प्ले टाइप है, जिसमें जो नंबर्स हैं या जो भी आपके वॉच फेसेस हैं वो एक तरह के बिल्कुल एजेस तक जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और काफ़ी बड़ा डिस्प्ले जो है आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। बेजल्स आपको ना के बराबर ही देखने के लिए मिलेंगे, और तो थोड़े बहुत आपको जो है ये ब्लैक अराउंड देखने के लिए मिलता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा जो है बेजल्स कम है। प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको आयोनिक्स एक्स स्टैंडर्ड ग्लास देखने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ आपको जो है इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जिसमें एप्पल ने क्लेम किया है कि आपको 70% ब्राइटर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाला है इस वॉच के अंदर। पर्सनली मैं जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इतना ज़्यादा जो है यूज़ नहीं करता, बट डेफिनेटली मैंने जो अपनी टेस्टिंग के अंदर जो यूज़ करा था उसमें मेरे को जो है थोड़ा बहुत ब्राइट देखने के लिए मिला था। ऑफकोर्स अगर आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन होएगा तो डेफिनेटली यू आर नॉट looking at the screen, but overall always on display is fine. So guys, now if I talk about water and dust resistance, so this Apple Watch Series 7 has IP6X dust resistance as well as water resistance. You can take this watch in the shower or for swim. It can survive up to 50 meter of water, and also you will have dust resistance as well. This is the first time that Apple has added dust resistance in a smartwatch. So guys, now if I talk about the battery life and charging speed on this watch, so this watch can easily last up to 1.5 days. If you have the cellular version, you might have a less battery life if you take a lot of calls through your watch, but otherwise this is the GPS version and the battery life typically lasts for about 1.5 days for me. But if you are more into sports activity, then yes, you will get a slightly lower battery life. But this year Apple has included a USB-C to this charging puck as well in the box, and it can charge up to 33% faster as compared to previous years. That's a nice thing, but you need to use a fast charger, fast USB-C charger. I'm using Apple's 18 watt fast charger, and it can charge the watch from 0 to 100% in just an hour. So guys, now if I talk about should you buy Apple Watch Series 7, so basically in my opinion Series 7 उन लोगों के लिए अच्छी रहेगी जिनके पास ऑलरेडी एक Apple Watch है। फॉर एग्जांपल Apple Watch 1 से लेके Apple Watch 3 तक की, उनके लिए जो है एक बड़ा जंप होएगा, क्योंकि आपको अच्छा डिस्प्ले, अच्छी बैटरी लाइफ, अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। बट आई विल नॉट सजेस्ट सीरीज 7 वॉच फॉर दोज पीपल जिनके पास एप्पल वॉच नहीं है, क्योंकि एप्पल ने जो है सीरीज 7 के साथ एप्पल वॉच SE को भी जो लॉन्च किया था, विच इज़ अ मच चीपर वर्जन विच स्टार्ट्स अराउंड 29,000 इन इंडिया। तो डेफिनेटली वो जो है एक आपके लिए बेटर एक्सपीरियंस रहेगा अगर वो आपकी पहली एप्पल वॉच होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर जो है आपको सारे ऑलमोस्ट सेम फीचर्स मिलते हैं और सेम टू सेम आपको जो है प्रोसेसर मिलता है। इवन आपको जो एप्पल वॉच सीरीज 7 में प्रोसेसर मिलता है वो सेम है एज़ कम्पेयर टू एप्पल वॉच सीरीज 6 और SE में भी जो है आपको सेम प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। सीरीज 7 में आपको जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा कलर्स के अंदर। एक लार्जर डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगा सीरीज 7 के अंदर, जिसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने के लिए मिलता है, जो आपको एप्पल वॉच SE पे नहीं देखने के लिए मिलता। और आपको जो है थोड़े बहुत अलग से सेंसर्स भी जो देखने के लिए मिलते हैं स्पेसिफिकली ऑन एप्पल वॉच सीरीज 7। तो डेफिनेटली अगर बजट आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देन यू कैन गो विद दी सीरीज 7, या फिर अगर आपको प्रीमियम स्मार्ट वॉच लेनी है और आपके पास आईफोन है देन ये सीरीज 7 इज द बेस्ट ऑप्शन। बट इन माई ओपिनियन मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो विद द एप्पल वॉच SE बिकॉज दैट्स द मच चीपर वर्जन एंड इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर विद द अदर एप्पल वॉचेस। तो अगर मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।